Hello bachcho, let's read a given question. The question says Wheatstone bridge is an arrangement of four resistance P, Q, R and S connected as shown in the figure. The values are so adjusted that the galvanometer G shows no deflection. The bridge is then said to be balanced when this condition is achieved happens. In the setup shown here, the point B and D are at same potential and it can be shown that P by Q is equals to R by S. This is called the balancing condition. If any three resistance are known, the fourth can be found. The practical form of Wheatstone bridge is slide wire bridge or meter bridge. Using this, unknown resistance can be determined as S equal to 100 minus L upon L into R, where L is the balancing length of the meter bridge. So यहाँ पे हमें कुछ questions given है, we need to find. सबसे पहला है question, when a metal conductor connected to a left cap of meter bridge is heated, then the balancing point. Option A shift towards right, option B shift towards left, option C remains unchanged, option D remains zero. Second question we need to find is a Wheatstone bridge consisting of four arms of resistance PQR and PQRS is most sensitive when option A all the resistance are equal, option B all the resistance are unequal, option C the resistance P and Q are equal but R is much greater than P and S is much greater than Q, option D the resistance P and Q are equal but R is much less than P and S is much less than Q. Fourth part of the question is given in a Wheatstone bridge circuit. P is 5 ohm, Q is 6 ohm, R is 10 ohm and S is 5 ohm. What is the value of additional resistance to be used in series with S so that bridge is balanced? Or in a meter bridge experiment, the ratio of left gap resistance to the right gap resistance is 2:3. We need to find the position of the balance point from the left. So ये basically हमें चार questions given है and we need to answer the all of them. So सबसे पहले for the question यहाँ पे जो key concept हम लिखेंगे. The key concept for this question is Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge के according we can see अगर हमारे पास चार resistance are connected on the arms of a parallelogram इस तरीके से, let's suppose ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है and in between there is a galvanometer. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं under balance condition P by Q will be equal to R by S. ठीक है, and in this condition we can say जो current through galvanometer होता है वो zero होता है. ठीक है, so that is what the balance condition for a Wheatstone network we need to keep in mind. ठीक है, इसी के application है basically meter bridge है, that along with the question we will discuss it. तो सबसे पहला question की बात कर लेते हैं. When a metal conductor left gap, तो मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन है सबसे पहला, तो मीटर ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं पहले. तो लेट सपोज ये इसका जर्नल सा एक सेटअप बना लेते हैं हम. इस तरीके से हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 एंड ये 1 मीटर वायर से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज. तो ये 1 मीटर वायर है, लेट्स से AB. ठीक है, एंड इस वायर के थ्रू वी हैव की एंड यहाँ पे हमारे पास बैटरी सोर्स है, इस तरीके से रियोस्टेट होता है. ये बेसिक सेटअप है इसका. ठीक है, ये बेसिक जो है हमारे पास मीटर ब्रिज का एक सेटअप हमने ड्रॉ किया. यहाँ पे एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं अलॉन्ग विद जॉकी जे से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये जॉकी हम इस वायर पर टच करते हैं हर जगह सो एज टू गेट द नल डिफ्लेक्शन, यानी कि हम IG को ज़ीरो किस पॉइंट पे जो है गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उस पॉइंट को हम फाइंड करते हैं. लेट्स सपोज कि ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M. ठीक है, तो अंडर बैलेंस कंडीशन अब हम क्या लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, अगर हम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करें इस वायर का तो हम लिख सकते हैं इस लेंथ को लेंथ AM या फिर रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AM इंटू सिग्मा, या फिर जस्ट सिंपली सिग्मा हम डिफाइन कर रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट. तो ये हो जाएगा AM और ये बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी बेसिकली MB. अब ये क्योंकि 1 मीटर है या फिर 100 सेंटीमीटर है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, 100 में से. तो एनीवेज यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल और ये रिजल्ट आएगा इस तरीके से. ठीक, तो ये बात हो गई. अब इस रिजल्ट के बेसिस पे हम देखते हैं, हमने क्या क्वेश्चन में बोला गया, हम R1 का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा रहे हैं और ये एक मेटल कंडक्टर है, तो इसका मेटल कंडक्टर है. सो फॉर मेटल कंडक्टर अल्फा जो होता है, फॉर अ मेटल कंडक्टर अल्फा जो कि है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली, राइट. या फिर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो डिपेंडेंस हम अल्फ़ा से डिनोट जो बेसिकली कंसिडर करते हैं इसको, तो ये जो अल्फ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, राइट. तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है फॉर अ कंडक्टर, राइट.
पॉजिटिव होती है दैट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि R1 की वैल्यू बढ़ रही है, R1 की वैल्यू बढ़ रही है, तो एज पर द प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हम देख सकते हैं कि LAM भी बढ़ेगा। तो वी कैन से LAM बढ़ेगा यानी कि LAM शिफ्ट होगा राइटवर्ड। सो वी कैन से देयरफॉर लेंथ जो हमसे पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सो ये हो गया आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्टिंग ऑफ 4 आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस PQR इज मोस्ट सेंसिटिव। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर कर रहे हैं हम इसको। तो बैलेंस कंडीशन क्या थी हमारे पास, बैलेंस कंडीशन ये थी कि P बाय, जो डायग्राम हमने बनाया था P बाई क्यू सेम ही एक्चुअली, तो P बाई क्यू अपॉन P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय S। ठीक है, तो ये रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हमसे बोला गया सेंसिटिविटी की बात हो रही है, सो फॉर मोस्ट सेंसिटिव, फॉर मोस्ट सेंसिटिव के केस में हम बोल सकते हैं कि P Q R एंड S शुड बी सेम और विल बी सेम, जस्ट हम बोल सकते हैं ऑल द रेजिस्टेंस आर इक्वल फॉर मोस्ट सेंसिटिव PQRS are same. So in this situation we can see, इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी ये डिपेंड करती है चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जितना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा उतना ही जितना गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होगा। तो स्मॉल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विल लीड टू द चेंज इन गैल्वेनोमीटर। सो अगर ये चारों सेम रेजिस्टेंस रहेंगे, सो इसमें से हल्का भी अगर कोई चेंज होता है तो फॉरन गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, हाई डिफ्लेक्शन इट विल शो, एंड वी कैन से द व्हीटस्टोन और द नेटवर्क विल बी हाईली सेंसिटिव और मोस्ट सेंसिटिव। सो चारों रेजिस्टेंस के सेम होना ज़रूरी है। सो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या बोला गया, इन व्हीटस्टोन ब्रिज PQRS की वैल्यू हमें गिवन है, वो चलो ठीक है पहले वैल्यू लिख लेते हैं। वी हैव बीन गिवन विद PQRS, सो वी कैन राइट P हमें कितना गिवन है, ये गिवन है 5 ओम, Q हमें गिवन है 6 ओम, R हमें गिवन है 10 ओम, S हमें गिवन है 5 ओम, राइट। तो बैलेंस कंडीशन हो रही है क्या, पहले तो ये चेक करते हैं, P बाई क्यू कितना आ जाएगा, 5/6, एंड R बाय S को अगर हम देखें तो इट इज़ 10/5। सो वी कैन से फ्रॉम हियर कि ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कंडीशन है, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, कि हमसे पूछा गया है कि व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी यूज इन सीरीज विथ S, सीरीज में हम क्या ऐड करें S के साथ सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो लेट सपोज हम यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा P था, ये Q था, ये R था, ये S था, S के साथ हमने लेट से एक रेजिस्टेंस M ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा, इस तरीके से बोला जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं P बाई क्यू विल बी इक्वल टू R अपॉन, क्योंकि S और M दोनों सीरीज में तो सिंपली ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब P बाई क्यू की वैल्यू तो हमें पता है 5/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू R की वैल्यू हमें पता है 10 है, डिवाइडेड बाई S की वैल्यू हमें पता है 5 है, 5 प्लस M। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पर 25 प्लस 5M विल बी इक्वल टू 60, तो 5M विल बी इक्वल टू 35 एंड M की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो 7 ओम का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में लगाना होगा इसके साथ सो दैट द ब्रिज बिकम्स बैलेंस्ड। ठीक है, सो नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, और वाले पार्ट के लिए हम देखते हैं। और वाले पार्ट में हमें क्या बोलेगा, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू राइट गैप रेजिस्टेंस इज 2:3, फाइंड द पोजिशन ऑफ बैलेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो यही कंसिडर कर लेते हैं केस, और लेट्स से
तो ये और पार्ट वाला अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो और पार्ट वाले में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट का रेजिस्टेंस, ये राइट का रेजिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं R1, इसको हम बोल देते हैं R2। ये हमारा वो वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर और ये लेट से जॉकी, ये लेंथ को हम मान लेते हैं लेट से, इसको हमने A बोला था, इसको M बोला था, इसको B बोला था, ठीक है। तो ये LM था, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी जस्ट 100 माइनस ऑफ LM, ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर की लेंथ होती है तो 100 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी द वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर बैलेंस कंडीशन R2/R1 विल बी इक्वल टू LAM अपॉन 100 माइनस ऑफ LM, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू को अगर हम देखें तो इसमें बोला गया हमें लेफ्ट टू द राइट का वैल्यू 2:1 है, 2:3 है, तो ये 2:3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू LAM डिवाइडेड बाय 100 माइनस ऑफ LAM, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 माइनस ऑफ 2 LAM एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 LAM, तो 5 LAM विल बी इक्वल्स टू 200, तो LAM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LAM की वैल्यू आ जाएगी 40 एंड इट विल बी सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर जो है हमारे पास आंसर आ रहा है फॉर दिस क्वेश्चन, जो हमसे पूछा गया बैलेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि LAM ही पूछा गया था, तो 40 सेंटीमीटर विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।